प्रणाम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। प्लांट ब्रीडिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं वर्षा गायतोंडे और इस वीडियो में मैं नेगेटिव टर्म्स इन जेनेटिक्स विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट ब्रीडिंग्स कवर करने जा रही हूँ। नेगेटिव टर्म्स इन जेनेटिक्स आई हैव enlisted here. First one is genetic erosion, genetic vulnerability, genetic wipeout, genetic extinction, genetic drift and genetic bottleneck effect. First term is genetic erosion. Erosion means gradual loss of variability from the cultivated species, their wild relatives and wild form. वेरिएबिलिटी कैसे लॉस होता है? जैसे ही हम यूनिफॉर्म वेराइटीज़ ग्रो करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वन वेराइटी इज़ पॉपुलर एंड इट इज़ टेस्टेड फॉर एडाप्टेबिलिटी एंड रिलीज्ड बाय वेराइटल टेस्टिंग कमेटी, तो वो बहुत ही पूरे देश में या इट विल बी कल्टिवेटेड इन पर्टिकुलर एरिया, सो the rest of the wild relatives or wild forms or other cultivated species will be neglected. That reduces the variability. Main cause is success of plant breeding or replacement of genetically variable land races by genetically improved uniform pure lines or hybrid lines. Example, green revolution के terms में उस टाइम में IR8, TN1, IR36 ये सब वेराइटीज़ राइस में यूज़ किया था। एंड इन टर्म्स ऑफ वीट बहुत सारे वेराइटीज़ आए थे, जैसे कि अर्जुन सब। अदर कॉजेस है जेनेटिक एरोजन के लिए ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ मैनी लैंड रेसेस, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ एट्सेट्रा। कैसे कि जैसे कि कोई पहाड़ में है और सम नेचुरल कैलामिटीज़ आ गए और वो एक्सटिंक्ट हो गए। Then improved crop management practices have virtually eliminated the wild forms of many species. These forms are called crop weed complexes, in which gene complexes were the source of considerable genetic diversity. Wild forms में क्या होते हैं? Gene complexes होते हैं. They are the responsible things for genetic diversity. Increasing human needs have extended farming and grazing into the forests, the habitats of most wild species. This led to extinction of wild forms. Developmental activities like hydroelectric projects, roads, industrial area, railways, buildings, etc. have also destroyed the wild habitat. आपने देखा होगा बहुत ही सारे वीडी फॉर्म्स रेलवे लाइंस में रहते हैं या फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे नेग्लेक्टेड एरिया होता है, मार्शी प्लेसेस यू कैन से, वी कैन फाइंड इट देन दैट प्लेसेस, एंड ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दे विल बी डिस्ट्रॉयड. Sometimes accidental or deliberate introduction of the weedy species may result in invasion of wild habitats by this species and may contribute to genetic erosion. जब भी weedy species other countries से introduce होता है, for example lantana camera जो introduce हुआ था as an ornamental plant, but because of its introduction it took over many of the crop species and destroyed, even it just wiped the existence of those wild forms. The second term is genetic vulnerability. Term vulnerability has been widely used to invoke fears of disasters, epidemics and threats to global food security, often without clarifying what is meant by the term. This uses vulnerability to indicate the condition that results when a crop is uniformly susceptible to pest, pathogen or environmental hazards as a result of genetic constitution, thereby creating a potential for disaster. Plant or crop being susceptible due to narrow genetic base in the cultivated species. Vulnerability मतलब क्या होता है? Being susceptible to biotic or abiotic stress. ससेप्टिबल कैसे हो जाता है? जब भी कोई क्रॉप यूनिफॉर्मिटी आ जाती है या बहुत ही वाइड एरिया में हम एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो कोई भी एक डिसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाएगा तो वो एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक में टर्न हो जाएगा, उसी से वल्नरेबिलिटी आ जाएगा. एग्जाम्पल है डीजी ऊजन जीन. जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में ड्वार्फनेस इंड्यूस करने के लिए ये जीन्स यूज़ किए थे. IR8, TN1 और भी बहुत सारे पेरेंट्स और वेराइटीज़, पॉपुलर वेराइटीज़ थे, उसमें यही जीन था. देन RH1, RH2, RH3 वीट कल्टिवर्स में जो भी सेमी ड्वार्फ कल्टिवर्स थे उसमें ये जीन्स कॉमन थे. मेज़ के बारे में बात करेंगे तो हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट आया था US में ड्यू टू टेक्सास CMST जो साइटोप्लाज्मिक सोर्स था उसके वजह से
Then Ascocleta blight in Punjab, in chickpea during 1980 to 81. और एक एग्जाम्पल है डॉनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा. कॉज क्या होता है? रोल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मोनोकल्चर, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, इनएडवर्टेंट ब्रीडिंग, मतलब एक यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन्ड ब्रीडिंग नहीं है. देन एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बायोटिक फैक्टर्स. ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मेंटेनिंग क्रॉप डाइवर्सिटी, एडिटिंग म्यूटेटेड और मॉडिफाइड क्रॉप्स, देन गिविंग एम्फेसिस ऑन क्रॉप एडेप्टेबिलिटी. The third term is genetic wipeout. Wipeout का क्या मतलब होता है? पूरा वैनिश कर देना या पूरा हटा देना. A threat to plant germplasm is a rapid and wholesale destruction of the wealth of potential species constituting genetic resources. Causes क्या होते हैं जेनेटिक वाइपआउट के लिए? फ्लड, फायर और एनी मैन-मेड कैलामिटीज इन द सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी और जर्मप्लाज्म कंजर्व्ड एरिया. इट मे बी इन सिटू कंजर्व्ड एरिया और एक्स सिटू कंजर्व्ड. एग्जांपल फायर इन द नेशनल पार्क्स और बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स. Shifting the germplasm from one location to another due to unadaptability, they may wipe out. एक जगह से एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह में जर्मप्लाज्म कलेक्ट करके रखा है, या आई जस्ट मेंटेन्ड ए बोटानिकल गार्डन एंड आई एम थिंकिंग दैट सम ड्रॉट हैज़ हैपेंड एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट टू अनदर प्लेस. सो वहाँ पे एडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है इन द अदर प्लेस और वो पूरा वाइप आउट हो सकता है. मीन्स होल collection may go out. Human negligence where lack of power supply, cooking, cooling facilities, cleanliness, animal grazing, etc. Wild animal खा सकते हैं, cleanliness की प्रॉब्लम हो सकती है, या cooling facility जहाँ पे हम ex-situ conservation की बात करते हैं. Then power supply ex-situ conservation में. Next point is predominance of potential biotic and abiotic stress in particular area. देन ड्रॉट आ सकता है, या कोई बहुत ही डिसास्टर्स पेस्ट आ सकता है, सुनामी आ सकता है, वट एवर इट मे बी. एक्यूमुलेशन ऑफ डिलीटेरियस अलील्स इन द पॉपुलेशन. नेक्स्ट टर्म है जेनेटिक एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए स्पीशीज. मतलब एक स्पीशीज है दैट विल बी पर्टिकुलर स्पीशीज विल डाई. एरोजन में क्या होता है? वेरिएबिलिटी लॉस हो गया. वाइप आउट में क्या हो गया था? यहाँ पे पूरा ही गया था, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पीशीज और जनरा, जितना भी कलेक्शन है वो सब गया था. देन वी वर टॉकिंग अबाउट वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी में क्या हो गया था? दैट बिकेम ससेप्टेबल. लेकिन एक्सटिंक्शन में क्या होता है? Here we are talking about a particular species which has vanished. For example, sparrows की बात करते हैं. Once upon a time it was very predominant in our area. लेकिन अभी अगर हम sparrow की बात करते हैं तो we may find in 1 or 2 number, even many a days we can't find them. That means the species is under threat. और ऐसे ही बहुत सारे species है जो extinct हो गए हैं. Increased risk of extinction are due to inbreeding depression, loss of diversity and deleterious mutation accumulation. Extinction कैसे हो जाता है? जैसे कि population size कम हो गया. When population is quite favorable, then random mating is favored and there is no question of accumulation of deleterious mutations. But when the number of individuals are limited and they are scattered in a big area, means large area, means वहाँ पे क्या हो जाता है? there won't be opportunity for random mating. उस टाइम में सेल्फिंग हो जाएगा. forced selfing leads to inbreeding depression that will lead to loss of diversity as well as accumulation of deleterious mutations. Next point is extinction is genetically considered to be death of a last individual of a species. Extinction जब कब बोला जाता है? When the last individual of a species will vanish, although the capacity to breed and recover of the number of individuals of a species have been lost before this point. अगर एक भी individual
जिंदा है, then we can't call it as extinction. We call them as endangered species. Remember this. Much common where speciation or founder effect has found. Causes of extinction: disturbs the biological chain and ecological balance, encourages less adaptiveness of related species. Population bottleneck can dramatically reduce genetic diversity by limiting the number of reproducing individuals and make inbreeding more frequent. Lead to habitat degradation, reduction of the production, competition, increased disease. इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है. को एक्सटिंक्शन ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज़, क्योंकि कोई अम्ब्रेला स्पीशीज़ होते हैं. अम्ब्रेला स्पीशीज़ मतलब जिसके ऊपर बहुत ही सारे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं. इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल साइकिल, वन इंडिविजुअल इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, अगर आप चूहे की बात करें तो कैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रैट. मतलब इन जनरल में बताया जाए, जब रैट ही नहीं रहेगा तो कैट का हालत ख़राब हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. जस्ट लाइक दैट द इकोलॉजिकल साइकिल विल बी इम्बैलेंस्ड. जेनेटिक ड्रिफ्ट नेक्स्ट टर्म है. ड्रिफ्ट होता है अल्ट्रेशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इफेक्ट और स्टोकेस्टिक इफेक्ट. जीन फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रेशन होता है. जब भी पॉपुलेशन होता है तो रिमेंबर दैट द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन विल बी 0.5 एंड इफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज हैपनिंग मीन्स इट विल टेंडिंग टुवर्ड्स p is equal to 1 and q equal to 0 और p is equal to 0 and q equal to 1. तब imbalance आ जाता है. It is most important in small populations, मतलब small population में हमेशा drift देखने के लिए मिलता है. This tend to reduce genetic variation as result to extinction of alleles. जब population small हो जाता है तो बहुत सारे important और valuable alleles will be extinct. Generally does not produce a fit between organisms and environment, can in fact result in non-adaptive or maladaptive changes. Adaptiveness में ये बहुत सारे changes आ जाते हैं organisms के. They cannot adapt or they may adapt to wrong situations so that they may undergo the extinction problem. Drift versus natural selection. नेचुरल सिलेक्शन और ड्रिफ्ट अपोजिट टर्म्स है. ड्रिफ्ट रैंडम प्रोसेस होता है, नेचुरल सिलेक्शन नॉन रैंडम. ड्रिफ्ट डजंट अकर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन एनवायरमेंटल चेंजेस से बनता है. ड्रिफ्ट इज़ नॉन डायरेक्शनल, नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल है. ड्रिफ्ट इज़ नॉन एडाप्टिव एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जनरेशन ऑफ एडाप्टिव ट्रेट्स. इन जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट alleles may disappear, but in natural selection it ends up with survival of the fittest. Darwinian rule है. Then in genetic drift operate on neutral alleles, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन हमेशा किसी भी alleles पे काम कर सकता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, बट नेचुरल सिलेक्शन में इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएशन. ड्रिफ्ट क्या होता है, दिस इज़ अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. जब मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात कर रही थी हार्डी विनबर्ग लॉ में, दिस इज़ वन ऑफ द फोर्स विच कीप्स द पॉपुलेशन इन फेवरेबल कंडीशन. रैंडम ड्रिफ्ट is the change in the frequency of an allele in a population due to random sampling of organism. Common in small population, when there is only one allele is left for a particular gene pool, that allele is said to be fixed. मतलब fixation of alleles हो जाएंगे जिससे further selection के लिए opportunity रही रहेगा. That is the major cause of drift. Drift यहाँ पे दिया गया है. जब भी ड्रिफ्ट होता है सैम्पलिंग एरर हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इस बॉल में 50% रेड एंड 50% वाइट गोलियाँ हैं एंड आई एम टेकिंग ओनली 100% रेड एंड नेग्लेक्टिंग वाइट. मतलब सैम्पलिंग एरर हो गया. आई एम गिविंग चांस टू पर्टिकुलर मीन्स रेड वन, दैट इज़ द कॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट.
Another cause of drift is it reduces the population variation. पॉपुलेशन वेरिएशन होता है तो एरोजन होने लगता है, एक्सटिंक्शन होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अलील्स फिक्स हो जाते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, वन इज़ बॉटलनेक इफेक्ट एंड वन अदर इज़ फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट मीन्स रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज एंड फाउंडर इफेक्ट मीन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फाउंड न्यू पॉपुलेशन। अक्सर ये हनी बीज में होता रहता है फाउंडर इफेक्ट। देखते हैं बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है। This occurs when natural disaster or similar events randomly kill a large portion of a population, leaving survivors that have allele frequencies that were very different from the previous population. कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ गया एक जगह में और बहुत सारे लाइक जीन्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब जो बचे हैं दे आर अलाइक, मतलब जो सिमिलर थे वो मर गए और जो सिमिलर नहीं थे वो बचे हैं। दैट इज़ नथिंग बट बॉटलनेक इफेक्ट मीन्स द पॉपुलेशन विच इज़ फाउंड इन द नेटिव फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। Next is founder effect. It occurs when a portion of the population means founders separate from the old population to start a new population with different allele frequencies. Example, few individuals from a population start a new population with a different allelic frequency than the original population. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। द पॉपुलर एग्जाम्पल इज सिल्वेरेस कॉलोनाइज्ड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम तास्मेनिया इन 1830। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है? सब पॉपुलेशन कॉज्ड व्हेन ए नेचुरल डिजास्टर रिड्यूस द साइज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट में होता है सब पॉपुलेशन एज ए न्यू कॉलोनी ड्रॉन फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट में अपने मर्जी से जाएंगे और एक नया कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन बॉटलनेक इफेक्ट में कोई भी कैलामिटीज़ आ गया या चेंजेस आ गए तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहा तो वो ओरिजिनल से डिफरेंट होगा। Bottleneck effect result of habit fragmentation और over exploitation of the species, मतलब किसी स्पीशीज़ को ज़्यादा कैटल ने ग्रेज कर दिया या ह्यूमन ने ज़्यादा यूज़ कर लिया, और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब हैबिटेट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बॉटलनेक इफेक्ट हो जाती है। फाउंडर इफेक्ट इज़ ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज़ विल गो एंड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट कॉलोनीज, नथिंग बट फाउंडर इफेक्ट। देखते हैं रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन एवोल्यूशन। ड्रिफ्ट से क्या होता है? दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, डजंट वर्क टू प्रोड्यूस एडाप्टेशन, कॉजेस नॉन एडाप्टिव एवोल्यूशन, मतलब एडाप्टेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है, अलील फिक्स हो जाते हैं, डिक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, न्यू पॉपुलेशन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल वन प्लेस ए रोल इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जितने भी न्यू स्पीशीज़ बनते हैं बिकॉज ऑफ द accumulation of mutations they are found due to the genetic drift। तो जब भी नेचर में नेचुरल फोर्सेस ऑपरेट होते हैं, सेलेक्शन, माइग्रेशन, म्यूटेशन, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, दे ऑल वर्क अगेंस्ट ईच अदर। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन होगा तो माइग्रेशन, म्यूटेशन ये सब अपोजिटली वर्क करते रहते हैं, देन क्या हो जाता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाता है, दैट्स हाउ ए पॉपुलेशन इज़ मेंटेन। लेकिन जब भी उसमें कोई डिविएशन आ जाता है तो सब स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ फॉर्म होने लगता है। दैट इज़ द रूल ऑफ नेचर। आई होप you liked this video. If you liked, do not forget to hit the subscribe button. Thank you.